CLAT warriors and English enthusiasts. Welcome to the class, and today we are going to dive deep into a very crucial topic for CLAT or any reading comprehension. That's right, that is tone, right? So what is tone? Tone of the passage represents the author's sentiment or attitude towards the subject being discussed. In other words, it's predominant emotion of author displays towards the subject. Like we need to see the diction, the choices of words he has chosen to express his emotion towards that subject, right? तो tone क्या हमको बताता है? For example, आपने वो movie देखी होगी PK, right? जब आमिर खान जेल में होता है तो वो अच्छा वर्ड के कई सारे इंटरप्रिटेशंस बताता, अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन में, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड डिकोड की सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जब वी आर रीडिंग समथिंग, तो हाउ वी विल डिटरमिन द टोन? बाय फोकसिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑथर हैज चोजन, राइट? तो अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है टोन और मूड में। What is tone? The selection of words, the attitude of author towards any subject or topic, and mood. That attitude actually sets the reader's mood towards that topic. Okay? अभी आगे देखते हैं. I have taken example of 3 words. If author is saying strolling, trudging, sprinting, right? तो अभी if someone is strolling, like slowly, leisurely walking, तो हमें क्या समझ में आता है? something that is calm, something that is enjoying, right? अगर वहीं पे trudge बोल रहा है, trudge means slow, laborious, significantly difficult, आप अपनी body को किसी तरीके से laborious तरीके से लेके जा रहे हो, तो is it calm? Is it enjoyous? No, it is exhaustion, reluctance. और उसी तरीके से sprint, अगर sprint word का इस्तेमाल किया है उसने, that means very fast, rapid, and that implies speed, intensity, urgency, competition. Hence, looking at these 3 examples, we can identify कि actually हम tone, वो word selection, वो word choices देख करके कैसे पता लगा सकते हैं कि either author is calm or exhausted or in some competition or intensity. Okay, I hope you have got the point. Moving on to the next. दूसरा वर्ड्स चॉइस तो हो गया. अभी वी हैव टू ऑल्सो लुक टुवर्ड्स टू इमेजरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिगरेटिव लैंग्वेज, पंक्चुएशन, कॉन्टेक्स्ट. अभी इफ देयर इज अ ग्रेट सेंसरी लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑथर दैट इवोक सम काइंड ऑफ फीलिंग, तो टोन हमारी डिफरेंट होगी, राइट? इसी तरीके से फिगरेटिव लैंग्वेज में आयरनी यूज कर रहा है, सरकाज़म यूज कर रहा है और यूफेमिज्म यूज कर रहा है ऑथर, तो भी हमारी टोन different होगी. तो we have to look towards all these structures to actually determine the correct tone of the passage. फिर what is the tips? What we need to do? We need to pay attention to word choices. We need to look at the imagery used and listen to the language. Listen to the language as if someone is speaking to you through that piece of paper which you are reading, right? चलिए, तो सबसे पहले टोन की तरफ चलते हैं. वेरी नॉलेजेबल, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव. अगर इनमें से कोई भी टोन आपके ऑप्शंस में है, दैट मीन्स द पैसेज इज एक्चुअली टेलिंग यू समथिंग, गिविंग यू नॉलेज अबाउट समथिंग, राइट? तो look for language that provides factual information, explains a topic in a clear and straightforward manner. अगर आपको ऑथर बता रहा है कि आप नया कोई अप्लायंस लेकर के, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेकर के आए हैं, उसमें जो एक मैनुअल आपको मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली narrative, descriptive और expository in nature, right? It is informative in nature. आप photosynthesis का प्रोसेस पढ़ रहे हैं या आप कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए चाहे गूगल पे जा रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल नैरेटिव, एक्सपोजिटरी और डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव. ऑलराइट, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट. नाउ कम्स इंस्ट्रक्टिव, एजुकेशनल, डायडैक्टिक. अब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेटिव, नैरेटिव? तो जब हमारी इंस्ट्रक्टिव, एजुकेशनल, डायडैक्टिक या एनलाइटनिंग टोन होती है, तो हमें ऑथर कुछ बता रहा होता है, कुछ सिखा रहा होता है, कुछ मोरल दे रहा होता है अलॉन्ग विद दैट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ओके, तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अगर इंफॉर्मेटिव है तो
इट इज टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, और डायडेक्टिक है तो टीच अ लेसन ऑफ ए मोरल और एथिकल की व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन, राइट। तो एम्फेसिस किसमें होता है, what is, what should be. There is a great difference between something that is descriptive or something that is didactic. Audience freedom क्या होता है, allows audience to draw their own conclusion and guides or direct audience to a specific conclusion or behavior by enlightening them about something. Okay. नेक्स्ट इज जॉकुलर, ह्यूमरस, अम्यूजिंग। कुछ भी आप मूवीज देखते हैं दैट एक्चुअली क्रिएट्स लाफ्टर, क्रिएट्स ह्यूमर, और आप पढ़ते हैं जहाँ पे आपको लाफ्टर क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली दैट पीस ऑफ राइटिंग इज अम्यूजिंग, ह्यूमरस, जॉकुलर। ही ट्राइज टू मेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेज फनी एंड अम्यूजिंग, राइट। जोक्स, पन, sarcasm, irony or playful language that lighten the mood and provoke laughter. वर्ड प्ले, पन बहुत सारा देखने को मिलता है, राइट। आप किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन की कॉमेडी कोई भी वीडियो प्ले करके देखो, इट विल बी फुल ऑफ पन्स, वर्ड प्ले एंड ह्यूमर। नेक्स्ट इज sarcastic, sardonic, ironic or taunting. When author expresses a negative feeling about something in an insulting way, uses words to mean the opposite of their literal meaning, often to mock, convey contempt or ridicule. ठीक है, when one thing means the opposite. For example, if I am going out in a stormy weather and says, oh what a pleasant weather, so I am being sarcastic about it, right? Next, ये मैंने let's see, sarcastic means to mock, ridicule or convey contempt, often humorous or cutting way. ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन sarcastic का क्या होगा, saying opposite of what literally meant, often with a biting or sneering vocal inflection if spoken, and often a direct biting form of verbal irony, can be playful or hurtful depending on the context. Another sarcastic के बाद आता है क्या, हमारा सार्डोनिक टोन आता है। सार्डोनिक में इट इज बिटरली cynical, scornful, disdainful, humorous, grimly mocking. विद सीरियसनेस आप जब किसी को मॉक करते हो, ओह तुमको क्या लगता है करप्शन खत्म हो जाएगा, तो यू आर मॉकिंग विद अ सीरियसनेस, राइट। फिर आता है हमारा ironic, टू हाईलाइट अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन, रियलिटी एंड बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज ट्रू। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं स्टॉर्मी वेदर पे बाहर जाऊं तो एंड आई से व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, तो यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ आयरनी। जब ये हमने फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ा है, जब रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस हो, कंट्रास्ट हो, राइट। And derisive, to show contempt or ridicule someone, something, or belittle, like to insult anyone, to mock someone, to belittle someone in a very mocking or witty way. Sarcastic way तो हो जाता है हमारा derisive tone, it is more sharp than sarcastic. And taunting, आप एकता कपूर या कोई भी सास बहू सीरियल देखो, भर भर के taunting उसमें भरी हुई होती है, आपको बहुत अच्छे से वो ऐसे सीरीज एंड सीरियल्स आपको taunting tone समझा सकते हैं, right? To provoke, annoy or challenge someone, often playfully but can be cruel, right? Teasing or making fun of someone, often repeatedly, to incite a reaction, highlight a weakness or challenge them. For example, can't hit the broad side of a barn. Can we? Come on, is that all you have got? Like बस इतना ही था तुम्हारे पास, right? तो someone यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि challenging और provocation, तो ये क्या हो गया, taunting. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंटेम्प्टुअस, डिस्पार्जिंग, जब आपको लगे कि ऑथर इज डीप हेट्रेड और डिसअप्रूवल, उसको मजा नहीं, ऑथर को मजा नहीं आ रहा, वो ऐसे टॉपिक को डील कर रहा है जिसमें ही इज full of hatred towards it, या उसको he is expressing his disapproval or dissatisfaction, expressing scorn or disdain. The speaker believes the subject is beneath them or utterly worthless. यानी there is a sense of superiority and the sense of inferiority, and author is approaching or taking that particular topic in a very disdainful way. तो हमारा टोन होता है contemptuous या disparaging, ठीक है। Implicit और explicit claims of superiority रहती है इसमें। Author speaker position themselves as superior in intellect, morality or capability compared to the subject they are discussing, ठीक है। जब इतना सेंट्रिज्म यानी कोई एक कल्चर का व्यक्ति दूसरे कल्चर के बारे में बात कर रहा होगा, तब आपको ये वाली टोन बहुत
प्रोमिनेंट समझ में आ जाएगी वहां पे। इनके हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ये हमारा ज्यादा अच्छा था, उनके यहाँ तो ऐसा होता है, राइट। नेक्स्ट इज cynical, skeptical, disbelieving. When author is not certain about something, when author is raising question, when author is disbelieving about the topic, when distrust in human sincerity or disdain, doubting the motives of others or widely accepted beliefs. For example, आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें एक कोई व्यक्ति है जो दूसरे छोटे बच्चे से कह रहा है कि बेटा कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त की नहीं मिलती, और अगर मिल रही है तुम्हें मुफ्त की तो आगे जाकर के तुम्हें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑथर और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी स्केप्टिकल, वेरी सिनिकल अबाउट द वर्ल्ड। तो जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिसबिलीफ होता है, तो टोन हमारी कौन सी होती है? यस यू आर करेक्ट, सिनिकल होती है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल, फॉल्ट फाइंडिंग, जजमेंटल, डिसअप्रूविंग, कंडेमिंग, सेंसोरियस। ये कहीं भी ये इतने सारे मैंने टर्म्स इसलिए लिए हुए हैं सो दैट इनमें से कोई भी अगर टोन का वो टोन लिखा हुआ आपके ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या होता है। तो व्हेन द ऑथर इज एक्सप्रेसिंग एडवर्स और डिसअप्रूविंग कमेंट्स और जजमेंट, व्हेन ऑथर इज एक्चुअली गिविंग जजमेंट, क्रिटिकल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। व्हेन वी critically analyze something, that means we are looking at pros and cons, and it can be positive, constructive criticism as well, and negative as well. Okay, so author uses adjectives and verbs like carry negative emotional weightage or judgment when author is passing judgment. ठीक है, तो हमारा टोन कौन सा होता है? क्रिटिकल या फॉल्ट फाइंडिंग। Critical is the broadest category. It is about finding fault. It can be constructive or destructive. ठीक है, असबिक। अब ये मैंने तीनों इसलिए लिया हुआ है ताकि कई सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन आता है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली क्रिटिकल, असबिक और डिराइसिव। तो लेट्स सी क्या डिफरेंस है। तो क्रिटिकल इज द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी. इट इज अबाउट फाइंडिंग फॉल्ट. इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. व्हेन ऑथर इज टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ समथिंग विदाउट एनी पार्शियलिटी तो हो जाता है हमारा क्रिटिकल. असबिक इज अ टाइप ऑफ क्रिटिकल टोन दैट इज स्पेसिफिकली हार्श, बिटर एंड ऑफन क्लेवरली कटिंग. जब सरकाजम होता है, उसमें विच होता है, तो हमारा टोन कौन सा हो जाता है? एसर्बिक हो जाता है, डिलीवर्ड विद शार्प एज. और थर्ड है डिराइसिव. डिराइसिव इज अ टाइप ऑफ क्रिटिकल और नेगेटिव टोन दैट फोकसेस ऑन मेकिंग द टारगेट सीम ridiculous through mockery or scorn. It's criticism delivered through ridicule. When author, for example, if government has implemented some scheme and people are very negatively getting benefited with that particular like कोई योजना चलाई है जिसमें एक्चुअली गरीबों की मदद करने के लिए, उनको पैसे देने के लिए या उनको उठाने के लिए है, बट जो ऑलरेडी क्रीम लेवल के लोग हैं वो सारा पैसा निकाले ले रहे हैं या वो सिर्फ बेनिफिट हो रहे हैं, जहां के लिए वो स्कीम बनी है उन तक पहुंच नहीं पा रहा। बहुत एक राइटर है जो इस टॉपिक को डील कर रहा है, तो हिज सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और डिक्शन कैन बी वेरी डिराइसिव फॉर दोज पीपल, राइट। ठीक है, हाँ, इसमें एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए हुए हैं. लेट्स सी, थिंक ऑफ दिस वे, यू कैन क्रिटिकली रिव्यू अ फिल्म पॉइंटिंग आउट इट्स प्लॉट होल्स. ठीक है, यू हैव इवैल्यूएटेड, यू कैन टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स बोथ इन when author is being critical. And जब हम, you can write an acerbic review of film, tearing it apart with witty bitter remarks aiming to sting, and you can deliver a derisive commentary on a film, making fun of its ridiculous premise and acting aimed to mock and show contempt, that how you did not like that film at all. अभी कल ही मैंने हाउसफुल 5 का रिव्यू देखा of some person who has posted in Instagram, and it was very derisive. Okay. Next is nostalgic, evocative. Nostalgia means yearning for your past, right? Good memories. The tone conveys a sense of longing for the past. Nostalgia कब होता है? When there is a longing for past. It can be good as well as sad memory. Keeping an eye out for language that stirs up emotion. Memories, for example, you look at an old picture with your grandpas, grandmas, and the emotions that comes up, that stirs, is actually nostalgia. If the text seems to be filled with emotions like longing, fondness, nostalgia, see if it transports you to different time or place, तो जब भी nostalgia tone होगा, तो जब the selection of words या जो आपका passage है वो बहुत ही ज़्यादा descriptive होगा, बहुत ज़्यादा vivid imageries का इस्तेमाल किया गया होगा, so that
ऑथर कैन ट्रांसपोर्ट यू देयर जहां पे वो चीजें फील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइगनेंट। अभी नॉस्टैल्जिया एंड पॉइगनेंट दोनों में ही मेमोरी आती है, देयर इज अ सेंस ऑफ, लेकिन पॉइगनेंट में क्या है, देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस, रिग्रेट, pity or a deep, sometimes painful emotional impact. It pricks, it stings the emotions, often leading to a lump in a throat or tears. While it involves sadness, it often comes with a sense of beauty, significance or tenderness related to the cause of that emotion. अभी दोनों के बीच में हम difference समझते हैं। अगर पॉइगनेंट टोन है तो इट विल इवोक अ स्ट्रॉन्ग, डीप, ऑफन पेनफुल इमोशनल इम्पैक्ट, सैडनेस, रिग्रेट, पिटी, टेंडरनेस, इट ट्रिक्स द इमोशन, वो गला भर जाने वाला जो इमोशन होता है। एंड नॉस्टैल्जिक टोन है तो इट एक्सप्रेसेस अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर द पास्ट। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, स्पेशली हैप्पी पर्सनल एसोसिएशंस। यस, कि अगर आप अभी हैं और नानी, बचपन में आप नानी के घर जाकर के क्या करते थे, एंड यू फील हैप्पी विद दोज इमोशंस, हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, कि नाउ यू वोंट बी एबल टू गेट दोज मोमेंट्स। अभी वो चीजें बीत चुकी हैं तो आप अपने बचपन को सोच करके याद करते हैं, लेकिन अभी वो चीजें नहीं है, तो देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस बोथ एट द सेम टाइम, राइट। फिर आता है प्राइमरी इमोशन। क्या होता है इसमें, डीप पियर्सिंग सैडनेस, सॉरो, एंड देयर इज अ वार्म मिक्स ऑफ वार्मथ, फॉन्डनेस, यर्निंग फॉर द पास्ट विद अ सेकेंडरी जेंटल सैडनेस बिकॉज इट्स गॉन, ठीक है। अभी फोकस कहाँ होता है ऑथर का, द इमोशनल वेट ऑफ स्पेसिफिक मोमेंट, इवेंट, लॉस, डिफिकल्ट ट्रूथ और प्रोफाउंड रियलाइजेशन। और नॉस्टैल्जिक टोन का फोकस कहाँ होता है, रिमेम्बरिंग हैप्पी, सिंपलर और आइडियलाइज्ड टाइम फ्रॉम द पास्ट। तो आई होप अभी आपको दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। तीसरा, अगर हम इसका कोनोटेशन देखें तो इट इज ऑफन सीरियस, पेनफुल, बट कैन ऑल्सो बी ब्यूटीफुल इन इट्स डेप्थ ऑफ इमोशन, राइट, एंड जनरली पॉजिटिव और बिटर स्वीट इन नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया yearning from the past, and poignant, अब जरूरी नहीं कि वो पास्ट की हो, something you have lost or something that you specific moment, loss, difficult truth और profound realization में आपका जो टोन होगा या ऑथर का जो टोन होगा, that can be poignant. Moving on to acerbic, harsh, severe, bitter, caustic, vitriolic, मतलब जब भाषा ना बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, लगने लगे, चुभने लगे, तो फिर हो जाता है कौन सा टोन, असेर्बिक। हाउ माइट यू एक्सप्रेस योर डिससैटिस्फैक्शन फॉर समथिंग और समबडी ब्रूटली। Here comes the part of the acerbic tone. The author uncovers his conflict with a hypothesis or expresses despite towards a man in acerbic tone. और acerbic tone को spot करने के लिए क्या है? That the language will be really sharp, critical and kind of harsh. It's when someone being really biting and sarcastic, not holding back in their criticism or disdain for something or someone. Like जो मन में आया वो बोले जा रहे हैं, and the tone is acerbic. आप उसको acidic से याद कर लो, जो जले एकदम चुभे, ठीक है? Next is angry, indignant, aggrieved. Angry is, for example, इलेक्शन होने के पहले लोग आए, उन्होंने बोला सड़क बनाएंगे, ठीक है, बट एक इलेक्शन हो गया पूरा, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, सड़क अभी तक नहीं बनी, एंड द नेक्स्ट टाइम दे अगेन कम विद अनदर बिग प्रोमिसेस, एंड वहां के जो पॉपुलेशन, वहां के जो लोग रह रहे हैं, तो उस वक्त जो वो अपना गुस्सा जाहिर करेंगे कि आपने अभी तक क्या काम किया, द डिससैटिस्फैक्शन विद दैट पर्टिकुलर पार्टी, तो जो उस वक्त डिक्शन होगा, चॉइसेस ऑफ वर्ड्स होंगे, दैट विल बी फुल ऑफ एंगर, इमोशनली चार्ज। एंड इंडिग्नेंट जहां पे आ जाता है, तो जहां पे डिसअप्रूवल या गुस्सा तो होता है, बट फॉर समथिंग फेयर और अनफेयर थिंग और अनजस्ट थिंग के लिए जब कोई आवाज उठाता है या गुस्सा दिखाता है, जब तो टोन हो जाती है हमारी इंडिग्नेंट, ठीक है। Look out for language that's full of rage, irritation and sense of righteous anger. सही चीज के लिए जब गुस्सा निकले, ठीक है, and the text might be brimming with strong emotions like outrage, resentment or a feeling of being wrong, कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं सजेस्टिव या इंडिकेटिव टोन में। अब सजेस्टिव या इंडिकेटिव टोन का मतलब ये नहीं है कि ऑथर आपको कोई सजेशन दे रहा है, ठीक है। there are very subtle cues present in the text, और ऑथर आपको उधर हिंट कर रहा होता है, नज कर रहा होता है, तब होती है टोन सजेस्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हीरो एंड हीरोइन, एंड हीरो हैज प्रपोज्ड टू द हीरोइन, और उसने अभी कोई जवाब नहीं दिया, बट शी इज थ्रोइंग सटल हिंट्स दैट या
उसके तरफ से भी हाँ है, तो वो शी इज नॉट डायरेक्टली सेइंग इट आउट लाउड, रादर throwing hints and cues which he has to understand. उसी तरीके से टेक्स्ट में भी author is throwing hints and cues and we have to understand कि author किस तरफ सजेस्ट कर रहा है, तो वो होती है सजेस्टिव टोन, ना कि वो कोई सजेशन दे रहा है. ठीक है, ओके. आते हैं अब apologetic. apologetic नाम से ही बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है कि जब कोई बहुत ज्यादा अपने गिल्ट में हो या अपने काम के लिए रिमोर्स में हो, अपोलोजाइज कर रहा हो, फॉरगिवनेस की आशा रख रहा हो, तो द टोन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट और ब्लेम इन रिगार्ड्स टू द सेटबैक्स और ट्रेजेडीज दैट मे हैव हैपेंड बिफोर. ठीक है, द ओवरऑल वाइब शुड कन्वे अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड डिजायर टू मेक अमेंड्स फॉर एनी मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ठीक है, मूविंग ऑन टू बेलिगरेंट और बेलिकोस. जब ऐसा लगे कि दो लोग आपस में चीख चीख के एक दूसरे का अक्यूज कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो टोन क्या होती है हमारी, बेलिग्रेंट या बेलिकोज होती है. यूजली यू विल सी, अगर आप कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई स्पीचेस देख रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, तो वहां पे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी विल बी अक्यूजिंग द अदर, देयर ओपोनेंट्स इन अ वेरी belligerent or bellicose tone, accusing them of something, doing how wrong they are, या their motto is not meeting the requirements of citizens. तो यहाँ पे जो टोन क्या हो गई है, belligerent या bellicose, जहाँ पे two parties who are in conflict battle war or have a conversation with each other. For example, इससे ही simplify कर देते हैं. घर में मान लीजिए आप कोई टीवी देख रहे हैं, कुछ भी, वहां पे एक हस्बैंड वाइफ है, अब बेड में गीला तौलिया रख दिया, अब वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, जो हीटेड कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, कितनी बार कहा कि गीला तौलिया बेड में मत रखा करो, वहां पे वो जो कॉन्वर्सेशन आगे डेवलप होगी, द टोन विल बी बेलिग्रेंट और बेलिकोज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल भी, हाँ, क्या इंडिकेटर्स होंगे, एग्रेसिव लैंग्वेज होगी, थ्रेट्स, चैलेंजेस, कन्फ्रंटेशनल स्टेटमेंट्स, जनरल सेंस ऑफ होस्टिलिटी. ठीक है, आगे आते हैं बायस्ड और स्लैंटेड. नाम से इनको पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑथर क्या होगा, इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स वन पार्टी. तो वहां अगर दो चीजों को लेकर के, फॉर एग्जांपल इफ वन राइटर इज राइटिंग एन आर्टिकल ऑन आईफोन एंड सैमसंग, ठीक है, अभी he himself is an iPhone user and if he is writing that particular article, तो obviously जब वो लिख रहा होगा तो he will be more inclined towards iPhone, and जो उसका selection of words होंगे, जो biasness create होगी, तो वो reader को आराम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे दोनों चीजों को unbiased या unpartial तरीके से treat नहीं किया जा रहा. There is lots of biasness because author is inclined towards one thing over other. तो while favoring a certain thing, person, group over the other, we tend to utilize a one-sided tone to show our tendency towards it. ठीक है, tendency towards it. Likewise, the author utilizes a one-sided tone in display contention for a specific thing in that section. So indicators will be negative language for the other topic, and assumption without evidence, accusation of hidden motives, and lack of consideration of alternative perspectives, or not presenting a fair or balanced view. अभी यहाँ पे लिखा गया है क्या, lack of consideration of alternative perspective या hidden motives. For example, जो ruling party है उसने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, एक नया स्कीम लेकर के आया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, तो जो ओपोनेंट क्या बोलेंगे, दे विल बी सेइंग दैट नहीं, इसमें तो कोई हिडन एजेंडा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें उनका अपना भला है, या फिर देयर इज अ लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. कमिसरेटिंग, सिंपैथेटिक, जब ऑथर इज फीलिंग समवन एल्सेस पेन, राइट. अगर मान लीजिए आपको यू आर रीडिंग एन आर्टिकल ऑन सती प्रथा और डाउरी और समथिंग, तो द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ द ऑथर इन सच अ वे दैट यू कैन ऑल्सो फील द पेन ऑफ दोज women who have gone through these प्रथास and these turmoils and sufferings. तो उस वक्त क्या कर रहा है ऑथर, दूसरे का फील पेन कर रहा होता है, कंसिडरेट हो रहा होता है, सिंपैथेटिक हो रहा होता है. तो जो लैंग्वेज होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है. गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, partial practices or social standards, the writer planned to familiarize the reader with the trauma experienced by the sufferers.
ठीक है, तो एक्नॉलेजिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द पर्सन और सेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स दोज हु आर सफरिंग, राइट। तो कमिजरेटिंग या सिंपैथेटिक टोन है, तो ऑथर विल बी पॉइंटिंग आउट और हाईलाइटिंग देयर सफरिंग्स एंड यू कैन फील देयर पेन, राइट। ठीक है, next is condescending, patronizing, obdurate, haughty. तो now what is condescending or patronizing? ऐसे वाला कि I am superior, you are inferior, ठीक है। and let's see, mentality of patronizing superiority of a specific thing, individual, gathering, as you would expect such snobbish. I hope you understand the meaning of the word snobbish, ठीक है। Contemptuous tones with respect to things considered inferior in the author's point of view. Look for words or expression that imply superiority, sarcasm, or lack of respect towards topic. For example, white and black. Racism. So there is a sense of superiority among whites and you. Just they all. वहां उतना छोड़ो, पीपल हु स्पीक इंग्लिश, बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है कि इंग्लिश बोलते हैं, तो वी आर वेरी नॉलेजेबल, हमें सबसे ज्यादा आता है। जो नहीं बोल पाता है वो तो बेवकूफ है। तो देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्डेसेंडिंग, पैट्रोनाइजिंग या ऑब्जुरेट, और जहां पे ऑथर को समझ में आए, राइटिंग से समझ में आए कि बहुत ज्यादा जिद्दीपना है, राइट। Stubbornness है। Haughty also means there is a stubbornness, there is a patronizing, there is a sense of superiority in the writing, in the selection of words over some other person, group or topic. Then the tone is condescending. ठीक है? Moving on to the next is dogmatic. Dogmatic क्या बोलता है? When the writer is self-assured with respect to his sentiments, he utilizes a fanatical tone to pass on his perspective. Indicators क्या होते हैं? Absolute certainty in one's belief. For example, religion का अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कुछ फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो कर रहा है, कोई रिलीजन को फॉलो कर रहा है, एंड अगर आप उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क करते हो और अगर आप उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन पूछते हो, तो ही बिकम्स सो एंग्री एंड कैन ऑल्सो बिकम एग्रेसिव। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जब हो जाती है तो टोन क्या हो जाती है हमारी? डॉगमेटिक हो जाती है, ठीक है। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और राइटियसनेस इन वंस बिलीफ। वेरी गुड एग्जाम्पल, ओ माई गॉड मूवी देखना, उसमें दोज बाबाज who are presented over there, they are full of these dogmatic beliefs and approach, ठीक है। तो उसमें उन्हीं चीजों को हाईलाइट किया गया है उस पर्टिकुलर मूवी में। तो अभी उस मूवी को देख करके आप बहुत अच्छे से डॉगमेटिक टोन को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूफेमिस्टिक और पोलाइट। इसको हमने फिगर ऑफ स्पीच में भी कवर किया है कि कोई भी ब्लंट चीज या हार्श चीज को बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही सेंसिटिव वे में जब ऑथर डिलीवर कर रहा होता है, कोई भी नेगेटिव चीज को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डिलीवर कर रहा होता है, तो हमारी टोन क्या होती है? यस, यूफेमिस्टिक होती है। तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं? यूज ऑफ सॉफ्टर और मोर पॉजिटिव लैंग्वेज टू डिस्क्राइब पोटेंशियली नेगेटिव और हार्श सिचुएशन, aiming to convey messages in a more gentle or polite manner, substitution of mild or indirect words for more direct or harsh ones to soften the impact of the message. For example, pandemic related अगर आप कोई optimistic article पढ़ेंगे तो it will be full of euphemistic tone, right? Optimistic and euphemistic. और कोई भी harsh चीज like कि कोई हम नहीं बोलते कि वो मर गए, वे थे शांत हो गए, राइट। तो देयर इज अ मोर पोलाइट और सेंसिटिव वे टू एक्सप्रेस थिंग्स। और जब आपको समझ में आए कि ऑथर इज बीइंग सो सॉफ्ट एंड सो सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस टॉपिक, देन द टोन इज यूफेमिस्टिक। ग्रैंडियोस, हाइपरबोली, व्हेन देयर इज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। जब आप पढ़ रहे हो और देयर इज अ विविड इमेजरी, सिंबोलिज्म, सारी चीजों का एल्यूजन का इस्तेमाल हो रहा है किसी चीज को डिस्क्राइब करने में। आपके घर के, आपके बुआ जी के घर में कोई शादी हुई है एंड फिर वो आ करके आपको बता रही है, अरे हमने तो इतना खर्चा किया, अरे हमने तो सलमान खान को नाचने के लिए बुला लिया था, इतने बड़े बड़े शैंडलियर लगे हुए थे, या जो भी जिस तरीके से वो पूरी शादी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे ना, द टोन इज एग्जैजरेटेड और ग्रैंडियोस, ठीक है। तो is characterized by the use of extravagant language, exaggerated expressions and lofty imagery, very supreme imagery, ठीक है। The language used aims to evoke a sense of grandeur, magnificence and importance, creating a dramatic and impressive effect. Like topic can be इतना छोटा, thing can be इतना छोटा, लेकिन description इतना बड़ा, ठीक है। I hope you have got the point. Next is introspective
कॉन्टेम्पलेटिव, अभी क्या होता है कि ऐसा लगे कि ऑथर या जो भी कैरेक्टर जिसके बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, ही इज जस्ट सिटिंग बैक एंड reflecting on his own actions, thinking about his own actions, rights and wrongs, his life. आप रात को जब एकदम पूरी दुनिया शांत हो जाती है और फिर एकदम से एक थॉट आपको ऐसा हिट करता है कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, तो आप उस वक्त कौन से जोन में होते हो? यू आर इन टू वेरी कॉन्टेम्पलेटिव जोन, यू आर वेरी इंट्रोस्पेक्टिव जोन. तो उस वो जो टोन होती जब आपको ऐसा पढ़ने में मिले तो क्या होगी टोन? यस, इंट्रोस्पेक्टिव टोन होगी. Your feelings or contemplate your action when how self-examination and reflect upon one's action and feeling. Look for language that delves deep into characters' inner thoughts and emotions. जितने भी आप ड्रामा में soliloquy पढ़ते हैं, that is also a very good example of contemplation or introspection. ठीक है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट. अभी यहाँ पे इतने सारे मैंने इसलिए लिख के रखे हैं. ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, सैंग्विन, एनिमेटेड, एस्टैटिक, इफ्यूजिव, इलेटेड, इलोक्वेंट, enthusiastic, exuberant, hopeful, vivacious, because all these tones actually express optimism. These are all positive tones. So when author is very optimistic, even in challenging situations like sanguine, when author is optimistic even in challenging situation, yeah, full of energy, high spirited, then the tone is optimistic or whatever is written here. ठीक है. The author is hopeful and confident about the future. लैंग्वेज सच एज होप, रेजिलियंस, प्रोग्रेस, आपको ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव वर्ब्स, नाउन्स, एडवर्ब्स से पाला पड़ सकता है उस पर्टिकुलर पैसेज में. दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस कन्वे अ सेंस ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव दैट अपलिफ्ट्स द रीडर एंड फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म. आप कोई भी संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देख लो, इट इज फुल ऑफ ऑल दीज टोन्स. ठीक है, कि उसके वीडियोस सुनने के बाद 5 मिनट तक के लिए लगता है कि आप दुनिया हिला देंगे. ठीक है, चलिए. Next is incendiary and provocative. वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं. ऐसी poems, ऐसी speeches which stirs emotion and ask you to take an action, implicit or explicit. तो language specially chosen to stir up strong emotion, provoke a reaction, conflict or rebellion or incite action कि भैया अभी हमको action लेना है. It aims to inflame passion, challenge established norms or deliberately cause a strong emotional or intellectual response. ठीक है, अगर आप मूवीज देखते हैं तो which are based usually on पाकिस्तान और टेररिज्म, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे वो यूथ को स्टिर करते, इमोशनली चार्ज करते हैं to do those heinous tasks. तो वो कैसे करते हैं? through these incendiary or provocative speeches and language. ठीक है. use of words that trigger immediate intense feeling, calls to action. ठीक है. language that encourages the audience to act often against perceived injustice or enemies. तो there are various rhetorical questions वो हो सकते हैं उसमें, actually not to get answer but to challenge belief or assumption, pushing the audience towards a particular viewpoint. लोग क्या यही लिबर्टी है, क्या यही फ्रीडम है, क्या तुम इसी दिन के लिए पैदा हुए थे? ऐसे सवाल उसमें होंगे to actually incite or call to action emotion कि भैया उठो और काम करो. ठीक है. नेक्स्ट इज पॉपुलर टोन. पॉपुलर टोन, अब बहुत सारे लोग बोलते पॉपुलर ना. जब आपको लगे, अच्छा साउथ इंडियन मूवीज देखते होगे आप, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो हीरो होता है वो माँ से, यानी लोगों के जो यूजुअली गरीब होते हैं उनके लिए वो कुछ ना कुछ काम करता है और उनके लिए आवाज उठाता है, उनके लिए वो विलन से लड़ता है. देन द टोन इज पॉपुलिस्ट, राइट? व्हेन the author, the populist tone is characterized by language that appeals to concerns, interest and often grievances of common person, not elitist, common person against perceived elites or the establishment. It frequently positions the speaker or movement as champion of ordinary people.
किसको? स्पीकर या ऑथर को. मूवमेंट चैंपियन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्टैंडिंग अप टू करप्ट और आउट ऑफ टच पावरफुल एंटिटीज. इंडिकेटर्स क्या मिलेंगे आपको? डिमांड फॉर चेंज एंड फेयरनेस, emphasis on the needs of the majority over the powerful minority, and the language used typically aims to resonate with the general population, highlighting shared struggles and aspirations for a more equitable society. तो जब आम आदमी के लिए आवाज उठाई जाए तो टोन है पॉपुलिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव. स्पेकुलेटिव यानी एजुकेटेड गेस, राइट? ठीक है. तो दैट एक्सप्लोर्स पॉसिबिलिटी, थियरीज एंड हाइपोथेसिस. इट इन्वॉल्व्स पॉन्डरिंग, कंजेक्चरिंग और मेकिंग एजुकेटेड गेसेस अबाउट समथिंग, ऑफन विदाउट डेफिनेटिव प्रूफ और सर्टेनिटी. तो वहां पे इट्स लाइक कि ऑथर इज थिंकिंग अलाउड what about what might be or could be. For example, some policy or scheme is implemented. Now author is dealing with that particular topic and he is raising questions ki it might benefit people or it may not. So when he is speculative, when he is making educated guess based on the given information, then the tone becomes speculative. ठीक है. Apprehensive बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है. आप मूवीज में या पुराने सोप ओपेरास में आपने देखा होगा वो एकता कपूर का सीरियल कि भैया दिया बुझ गया अब पक्का पति मर जाएगा. ठीक है. तो ऐसा वो जो फियर, फोरबोर्डिंग फियर कि कुछ है नहीं फिर भी देयर इज अ सेंस ऑफ फियर that something bad or unpleasant will happen. तो जब आपको ऐसा पढ़ने में लगता है कि कुछ है नहीं फिर भी the author is fearful about something, that some this poem The Second Coming, आप वो पढ़ना. इट इज ऑल्सो फुल ऑफ apprehensive tone. तो author वहां पे author is actually apprehensive of a storm or that will apocalyptic storm that will bring destruction. ठीक है. The author is anxious or fearful that something bad or unpleasant. Description of unease, uncertainty, fear, tension, worry, foreboding, presence and sense of impending threat. ठीक है. Now, disrespectful, impertinent, impudent, insolent, अगर ये ऑप्शंस आपको टोन में दिखते हैं, that means आपका पैसेज क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, directly or indirectly questioning or dismissing the instruction, opinions and presence of someone in a position of authority. When you question someone who is an authority but in a very informal, in a slang, in a very inappropriate way, in a very disrespectful way, तो आपका जो टोन है वो क्या हो सकता है? Insolent, impudent. ठीक है. Sarcasm or mockery, using humor or irony to belittle or make light of other person or their idea in an offensive way, and treating someone with a casualness that is not warranted by the relationship or setting, using slang with a formal figure like going to your principal or teacher, and using informal language or slang as you use with your friends will be insolent or disrespectful. ठीक है. Using words or phrases that disregard the other person's input or feelings. तो ये सारी चीजें आपको ये elements देखने मिल सकते हैं impertinent, impudent या insolent tone में. ठीक है. एपिग्रामेटिकल, अभी पिछले कुछ 3, 4, 5 मॉक के पहले आपके ऑप्शन में था भी एपिग्रामेटिकल, राइट? तो वहां पे क्या, दैट मीन्स एपिग्राम हमने फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ा है. एपिग्राम क्या होता है? समथिंग दैट इज विटी, समथिंग दैट इज वेरी शार्प, लाइक फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, राइट? हमने अभी कल ही पढ़ा. तो something epigrammatic is like a short, smart, punchy statement, often with a bit of humor. When there is a lot, when there is a less word and very deep, very broad meaning, then आप कह सकते हैं the tone is epigrammatical. ठीक है. Alright, we have come to an end. तो I hope आपको ये सारे टोन्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. और नाइस इफ क्लैट के लिए किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को अच्छे से समझने के लिए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टोन कि वो ऑथर एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज हिज इंटेंशन बिहाइंड वॉट एवर ही इज एक्सप्रेसिंग. और इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब जो भी पीस ऑफ राइटिंग आप पढ़ते हैं, वेदर इट इज न्यूज़पेपर, ओपिनियन, आर्टिकल और योर मॉक्स और एनीथिंग, ट्राई टू फाइंड आउट द hints, the cues the author has given, the words he has chosen, and find out the right tone. All the best. Thank you.